अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर नुमान एंड दिस इज़ बैठक एपिसोड 6। मैंने कोई आधा घंटा पहले जो है ना स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम पे कि बैठक tonight at 2 a.m. which sounds like a very sexual sentence. I know someone even messaged me saying that this sounds like a very horny message. I'm like everything I say sounds like very horny. नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. एंड अभी 2 बजने में 35 मिनट रहते हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट. तो और 2 बजे मुझे रिलीज़ करनी है. तो द ओनली रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़ टू लेट यू नो दैट इट्स that easy to record a podcast. Like, it's not difficult. Like, you just need to whip out your phone, have something in mind to say for 20 minutes straight, and that's it. कोई इसमें लंबी नहीं है. लंबी है क्योंकि लंबी करनी होती है 20 मिनट तक, लेकिन yeah, it's not really that difficult. And I think anyone who has anything to share with their life is capable of making a podcast. And I think a lot of people have a lot to share. And that's why you make friends, right? To share things that are happening in your life. That's why you have social media, to share things. Then that's also why you have a podcast, to share something. Khair. Let's move on. Today's topic is gonna be is how do I put this? Is very private and emotional. Okay? So if you're someone who's not really into like sad things, or listening to a guy whine about all his past and then make you realize something in the end, then this isn't for you. ठीक है? If you're just someone who's gonna comment below कि अबे क्या अंग्रेज़ी में झाड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये वो, and depression is fake and sadness is fake, ये सब कुछ fake है, तो just please click off. लेकिन I know this is a very endearing topic for people. I know this is a very personal topic, and the topic which is very dear to someone's heart for a lot of people, and I know this is something that a lot of people go through, and I went through as well. And I'm just gonna share a lot of private things. And इस पॉडकास्ट के बाद आपको अंदाज़ा हो मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा. ठीक है? I don't know why I put out so many things for people to understand, लेकिन I think it's extremely essential to, if you have an audience, tell them what you learned, because that's your, that's what you have to offer. What you learned, your mistakes and your, whatever you did, आप जो आपने सीखा है ना, that is what you have to offer. Like, why do you go to a job? Because you learned something and now you have something to offer. ठीक है? So without further ado, मैं अभी एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, फिर हम चलते हैं डिप्रेशन की तरफ. Okay, with my videos, there is this one really cool thing that came out of them, is the fact that एक तो small community है जो of people that love me and I love them equally, if not more. And लेकिन एक और चीज़ ये आई कि people who I used to watch, people who I respected in the YouTube community, they're my friends now, and they send me requests, they send me messages. Like the other day, Maruk Sethi sent me a message. Other day नहीं, literally कल ज़हरी के बाद जो ना Maruk Sethi का message आता है, जो कि मैंने सुबह देखा कि she sent me a voice note telling me how much Baithak episode 1 helped her. Which, there is something to say about that, first of all. I know Maruk is younger than me, and she's around, I don't know, 18, 19-year-old YouTuber. And she's been doing this for quite some time, and she's someone my sister watches, और मतलब बहुत लोगों को पसंद है, मुझे ही पसंद है बहुत Maruk. तो when someone you admire tells you that something you told them helped them and helped them understand themselves even more, that is such an amazing and different feeling. तो मुझे एक तरीके से मोटिवेशन हो गई, यार आज मुझे एक कहानी सुनानी है about my depression. And I wouldn't, अब मेरी बात सुन लें, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, I don't know what depression, actually I do know what depression is, लेकिन I wouldn't classify what I had as depression. ठीक है? I wouldn't classify as that. क्योंकि I don't know, I don't really have a firm grasp on what depression actually is, and I think a lot of people don't know what it is. ठीक है? लेकिन तो मैं उसको, it was an immense amount of sadness and self-pity for an elongated period of time for about 5 months. So it was straight sadness for 5 months. And उसके लिए मैंने अभी के लिए उसको let's just call it depression. ठीक है? मैं diagnosed नहीं हुआ था as a depressed person, लेकिन for the sake of argument, let's call that depression. ठीक है? Now before we move on to that, because there's so much I have to say, मतलब आप लोग को मेरे बारे में इतना कुछ पता चल जाएगा उसके बाद जो है ना, like
I know you see YouTubers and people on the internet, and you see them as this one dimensional being, कि मतलब ये इनके पास यही चीज़ है, that this is it, this is all they are. They're like these vain people, जो बहुत ज़्यादा people who are extremely vain, and they put up stories, and they put up pictures on Instagram, and then they put up video in which it's just them, and they're telling about their life, and it's just extremely one dimensionally. There's no depth to this person. That's one of the main reasons why I started a podcast, so that people can understand there's a bit of depth to me as well, and to everyone essentially. खैर, तो मेरी दोस्त है, I'm not gonna name her, मैं उसका नाम लेता हूँ, let's say आयशा, ठीक है. मेरी एक दोस्त है आयशा. उसको जो है ना काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं, क्योंकि उसके जो दोस्त हैं ना वो मुझसे नफरत करते हैं, ठीक है. टीनेज बुलशिट. मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अब इसको कहता हूँ यार क्या बकवास है, लेकिन टीनेज बुलशिट होती. व्हाई आर यू फ्रेंड्स विद हिम, आई हेट हिम, व्हाई आर यू स्टिल टॉकिंग टू हिम, ये वाले जो मजाक होता है ना, वो सब जो है ना ये आयशा के साथ करते हैं कि तुम क्यों उससे बात करती हो, ये वो. और आयशा को जो है ना कॉन्स्टेंटली वो हेट मैसेज भेजते हैं अबाउट मी, ठीक है. और मैं हूँ बेगैरत. मुझे पंगे लेने का शौक़ है. मुझे पंगे तो नहीं, आई विल टेल यू व्हाट इट इज़ एक्चुअली, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं पंगे ले रहा हूँ. लेकिन मैंने उनका जो हेट मैसेज था ना वो मैंने कॉपी पेस्ट करके अपना कैप्शन लगा दिया इंस्टाग्राम की तस्वीर का. अभी फ़ौरन उसने हेट मैसेज भेजा, मैंने उसका कैप्शन लगा दिया अपनी तस्वीर का. मैंने, क्योंकि दिस इज़ जस्ट इट, मतलब लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू डू. मैं बैठ के उसको उदास हो जाऊँगा. हेयर द थिंग व्हाई, क्या कहते हैं, दीज हेट कॉमेंट्स एंड दीज स्टोरीज एंड these tweets about me, this immense amount of hate that I receive currently, it doesn't get to me anymore, and I'll tell you why it doesn't get to me. क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने पॉडकास्ट लगाई थी ना कि you need to deal with the things, memories that actually take a toll on you whenever you think about them, or whatever, something you look at and it reminds you of a specific memory. You need to deal with those memories properly. बैठ के उनको सोचें, relive them, and with as much detail as you possibly can, so that those memories don't scare you anymore, and you can tell yourself कि यार मुझे इससे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लाइक मेरे बारे में एक वक्त था बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आती थी, हेटेड ट्वीट्स, बहुत ज़्यादा जो है स्टोरीज लगती थी मेरे खिलाफ, बहुत ज़्यादा. मुझे बहुत हेट मैसेज आते थे, हेट कॉमेंट्स आते थे. ये सारा जो हेट वाली जो चीज़ है ना ये मुझे बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा. और इट टुक अ मैसिव टोल ऑन मी कि फॉर लाइक आई थिंक 5-6 months, और 6 months एटलीस्ट, मैं जो ना कंप्लीट जो डिप्रेसिव एपिसोड थी ना, डिप्रेशन जो हो गया था मुझे, इस दोज थिंग्स लेड मी टू लाइक दैट डिप्रेशन फेज, ठीक है. तो उन 6 महीनों में मैंने सीख लिया कि how do I deal with this, and I've come to terms with hate in general. I like to believe, because these hate comments and these hate stories, posts, messages, they don't do anything to me anymore, because I've dealt with them. मैंने देख लिया इनसे होता क्या है, और इनसे कुछ खास होता नहीं है. लोगों को डर लगता है ना, अबे यार मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा, 10 स्टोरीज मेरे खिलाफ आ जाएंगे, रिप्लाई आना शुरू हो जाएंगे, लोग हेट करना शुरू कर देंगे, लिबरल्स आ जाएंगे, कंजर्वेटिव आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे. अगर आपने पीपीपी के लिए कुछ लिख दिया तो एमक्यूएम वाले आ जाएंगे, एमक्यूएम के लिए कुछ लिख दिया तो पीएमएलएन वाले आ जाएंगे. लाइक ये डर होता है ना लोगों के लिए कि ये जवाब आएगा, ये जवाब आएगा. ये डर एक तरीके से निकल गया मेरे अंदर से, और वो इसलिए निकल गया क्योंकि मैंने ये इतना देखा, और उसको मैंने अपने वॉलंटरली अपने दिमाग के अंदर इतना उसको बिठा लिया था, इतना उसको रिलीव किया है कि इट डजंट मैटर टू मी एनी मोर. मुझे यूट्यूब पे कोई हेट कमेंट भेजता है, मैं उसको पिन कर देता हूँ. मैं लिटरली हेट को, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यूर अ यूट्यूबर एंड इफ़ यूर अ स्टार्टिंग यूट्यूबर एंड और एनी सॉर्ट ऑफ यूट्यूबर. आई नो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स लिसन टू मी, एंड आई एम नॉट समवन हु कुड लाइक पास अ जजमेंट कि आप अपना चैनल कैसे ग्रो करें या वो करें. लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है. लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपका हेट कमेंट आता है ना, आप उसको इग्नोर ना करें, आप उस हेट कमेंट को जो है ना डिलीट ना करें, आप उस हेट कमेंट को आगे से आप अपनी बदतमीज़ी ना रिप्लाई ना करें. आप लिटरली उस हेट कमेंट को लाइक कर दें और एक्नॉलेज करें उसके हेट को, क्योंकि मैं ये करता हूँ. मुझे कोई हेट भेजता है, मैं कहता हूँ हाँ यार बात तो ऐसे सही कर रहे हो, लेकिन यार क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता. एंड या फिर मैं इतनी लंबी भी नहीं करता, मैं कहता हूँ हाँ वैसे सही कह रहे हो, या फिर मैं उसको लाइक करके उसको पिन कर देता हूँ. मतलब दिस इज़ जस्ट इट. आई डोंट genuinely hate people, and the reason I don't hate people is because I've realized that hatred doesn't do anything. At least it didn't do anything for me. Okay, so
I'm not going to get into why I was extremely depressed. I'll tell you why I was depressed. Back in September 2019, I was accused of क्या कहते हैं gaslighting and और क्या था manipulating and a bunch of 17, 16-year-olds when I was 18 years old and 19 years old. So a bunch of girls started stories लगाना शुरू कर दी बिना नाम के, नाम किसी का नहीं था. I'm not going to get into details लेकिन Human One gaslights individuals और उनको जो ना he makes them question their own sanity. और you know how internet works, वो उधर से एक बात आती है उसको बढ़ा देते हैं और फिर उसको इतना मैग्नीफाई कर देते हैं और फिर 10 बातें और लगा देते हैं and अजीब अजीब कहानी बनाना शुरू कर दी. But very weird rumors. A lot of those were true. Like I was a shitty human being when I was 18. And तो उन्होंने उधर से वर्ड लगाना शुरू कर दिया. He's a harasser, he's a pedophile, he's a सारे जो ये ख़राब words होते हैं ना, they started saying those things about me and they started putting up stories. ठीक है, there was a lot of hatred, a lot of hatred. Like imagine you're on social media, ठीक है, and people call you all of those things. Like people call you an abuser or a harasser or पता नहीं क्या कुछ, ठीक है, without like knowing you or anything, or without knowing your side of the story or anything for that matter, just saying those things. ठीक है, तो what I did was मैंने बैठ के जो ना apologize कर लिया. मैंने 10 मिनट की apology वीडियो लगा दी and I was like, I'm sorry, you know, this was a shitty thing. I should have been more cautious when I was 18, 19 years old. But in my defense, I'm currently 20. People evolve, people change in like 2 years, in a span of 2 years. And, you know, when I apologize, I'm sorry, I shouldn't have done that. Yeah, okay. And a lot of those things were fake. I think at one point someone actually made a rumor कि उमर जो है ना बाहर किसी लड़की से जो है ना पैसे मंगवाता है और उसको पैसे वापस नहीं किए उसने. Which doesn't make any sense because I don't have an account. And it's so stupid क्योंकि जिस लड़की के बारे में वो कह रहे थे, accuse कर रहे थे, वो लड़की मेरी दोस्त है अभी. और वो लड़की कह रही है मैंने तो आज तक ऐसी कोई बात की नहीं है किसी से, वैसे ही लोग लगा देते हैं. लाइक लिटरली हुआ ये था कि एक लड़की थी मेरी दोस्त, उसको मैंने मैथ पढ़ाई थी एंड शी लिव्स इन USA. ठीक है, उसको मैंने मैथ पढ़ाई थी और उससे मैंने पैसे नहीं मांगे थे. उसकी अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती पैसे भेजे थे $50. और $50 इसलिए भेजे थे क्योंकि उस बच्ची के 96% आ गई थी मेरे पढ़ाने से. ठीक है, तो मैंने मांगे नहीं थे और उन्होंने पैसे भेजे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू और मैंने वो पैसे आज तक रिसीव ही नहीं किए. ठीक है, और किसी को कहीं से वो बात पता चल गई. ठीक है, और लोगों ने उसको झूठ क्या बनाया कि उसने उमर ने पैसे मंगवाए थे और उसको पैसे वापस भी नहीं किए. और ही डज दिस, ही लाइक, और उस लड़की को भी छोटा बनाती. वो लड़की मुझसे खुद 2 साल बड़ी है. ठीक है, शी वर्क्स, शी हैज़ अ जॉब. तो मतलब वो अभी भी मेरी दोस्त है. So it's so stupid. Like the internet is just a weird place where you could just say anything and make anyone believe anything. Like it's very plain and simple. Like in my heart, I don't really have anything against any of these people who like accuse me a lot of things. मैंने किसी का नाम तक नहीं लिया, मैंने किसी को आज तक expose नहीं किया, even though they tried to expose me. मेरी तस्वीरें लगा दी, तस्वीरें तो नहीं, screenshots लगा दी and all of that. ठीक है, and I think there's a lot to be said about people who actually forgive. I think there's a lot to be said about people who forgive other people who have done them wrong. Okay? I know I did a lot of people wrong. I know, like I was a bad person when I was 18. I'm sorry. Like मैंने बहुत माफ़ी मांग ली है, मैं तंग आ गया हूँ. ठीक है, and I'm paying my dues. ठीक है, and I was cancelled on Instagram or whatever. उससे हुआ ये था, cancel हुआ तो हाँ, तो पहले मैं apologize forgive वाली बात करूँ पूरी. तो when you forgive someone, that's the ultimate best thing you could ever do in that situation. Imagine someone wronged you so badly. Like let's just मैं just example दे रहा हूँ. ठीक है, imagine someone wrongs you and then you forgive that person. कोई आपके साथ बहुत बुरा करे और आप उसको माफ़ कर दो. कोई आपकी मतलब पूरी ज़िंदगी उलट पुलट कर दे और आप उसको माफ़ कर दो और आप उसका नाम भी ना लो और आप किसी को बताओ भी नहीं और आप खुद बोलोगे यार गलती हो गई, सॉरी. आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा? अल्लाह ताला आपका साथ नहीं देगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप you're very weak in the face of the world. You might be weak. Oh, he didn't say anything because he was wrong and he realized it and he was scared. No, I didn't say anything because I know the kind of mental toll it has on someone when you expose them, whatever you do. I know how much it hurts. I know how much it hurts when someone so close to you completely stops associating themselves with you and just doesn't listen to you and just says, I don't care what you have to say, I just can't be friends with you. I know how much it hurts. मुझे पता है. ठीक है? So to
एक्सपोज समवन एल्स। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि आप दूसरों के ऐप छुपाओ, ठीक है, मैं आपके ऐप छुपाऊंगा। अब मेरे ऐप तो दिख गए थे हर किसी को, लेकिन मैंने बाकियों के छुपा के रखे। मैंने कहा नहीं अल्लाह देखो, मैं भी चाहता तो मैं भी कर सकता हूँ एक्सपोज, ठीक है, मैं कर सकता हूँ ये बातें, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बस जस्ट आई डोंट वांट टू। एंड उसका अल्लाह ताला ने सिला दिया। आप माफ़ करो, अल्लाह ताला सिला दे देगा आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थॉट मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन राइट नाउ आई हैव नेवर बिन दिस हैप्पी एवर विद एंड दिस सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव एवर बिफोर। कभी भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। एंड आई थिंक द ओनली रीज़न दिस इज़ अ थिंग, लाइक आज मैं सक्सेसफुल थोड़ा सा इसलिए हूँ क्योंकि आई फॉरगिव अ लॉट ऑफ पीपल। आई नो इट वाज़न्ट माई प्लेस टू फॉरगिव समवन। आई नो सम कोई लिबरल सुन रहा होगा, कह रहा होगा हो ये कौन होता है माफ़ी मांगने वाला, माफ़ करने वाला। लेकिन कोई आपके साथ गलत करता है ना और आप उसको माफ़ कर देते हो। मेरे साथ गलत हुआ ना, ठीक है, नो इट डजेंट मैटर अगर मैंने भी गलत किया, मेरे साथ भी तो गलत हुआ ना, मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह डज नॉट लेट दैट गो इन वेन एंड ही ट्रेजर्स दैट। तो खैर, अब मेरी ज़िंदगी के साथ क्या क्या हो गया था, ये कैंसिलेशन हो गई। मेरी एक पॉडकास्ट हुआ करती थी, मुंह के फायर। अली जो बंदा था मेरे साथ, ही सेड मैं आई कांट डू अ पॉडकास्ट विद यू। आई वाज इन इस्लामाबाद एट अ टाइम, आई केम बैक टू कराची। और क्या हुआ था, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी एट द टाइम, शी सेड आई कांट बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। मेरे सारे दोस्तों ने मेरे खिलाफ स्टोरीज लगा दी, मेरे सारे दोस्तों ने नफरतें फैला दी बहुत ज़्यादा, सब ने मुंह फेर लिया, कोई नहीं था मेरे साथ। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, इन द कॉरिडोर्स पीपल यूज्ड टू से पेडोफाइल यूर हियर, ओह यूर हियर, लाइक ऐसी हरासर यूर हियर। अबे इधर आ गए। मैं इधर जो लिबरल क्राउड था मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो मुझसे आगे क्वेश्चन करता था, मुझे बातें सुनाता था। तो लेकिन उसका भी मैंने कुछ ख़ास बुरा नहीं बनाया, ठीक है, मुझे बुरा लगता था एंड आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज वेरी सैड। एंड तो ये सारे रीजंस थे, ठीक है। सो आई हैड माई रीजंस टू बी सैड, आई हैड माई रीजंस टू बी टू जस्ट किल माई सेल्फ, एंड आई डिड ट्राई टू किल माई सेल्फ, लेकिन डिडंट वर्क, थैंक गॉड, ठीक है। तो फॉर दोज 5-6 months मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था एंड दिस थिंग वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन माई हेड कि एवरी वन जस्ट कम्प्लीटली लेफ्ट यू, and they left you because you were probably a bad person, and you were a bad person. That's why they left you. That's a very bad realization to ever have. Like you're a bad person, like तुम एक बुरे इंसान हो और इसलिए हर किसी ने तुमसे रिलेशन ख़त्म कर लिया। And you just sit and think कि मतलब like that's something to think about. And I remember कि I was so sad. I used to be so sad. मैं अपने कमरे में बैठना मैंने बंद कर दिया था। मैं अपने कमरे में नहीं आता था। And the reason I didn't used to come to my room because मैं constantly अपने कमरे में बैठ के different चीज़ों को देख के I would imagine कि हाँ, how do I kill myself with that book? Like that's a very weird thing to say. Oh, how do I kill myself with that pen? Okay, what if I like break my laptop और उसका शीशा बाहर आ जाए, so I could just end it right here. Like मैं constantly ये दिमाग में मेरे ख्यालात आते रहते थे. It's a very difficult time. It's a very, very bad memory. And I didn't have social media. मेरे माँ बाप को सब पता था. मेरी बहन को threats मिल रही थी. तो ये भी हुआ था, मेरी बहन को threats मिली थी. That's why I deleted my account. Not a lot of people know this. लेकिन I deleted my account and I deleted my apology video. Account ही पूरा delete कर दिया था क्योंकि मेरी बहन who has nothing to do with any of this was receiving threats. मेरे 13 साल के कज़न्स थे, उनको threats मिल रही थी कि, और उन बेचारों ने अपने अकाउंट डिलीट कर दिए थे डर के मारे, ठीक है। तो वॉज इन बैड प्लेस। मेरी पूरी फैमिली को पता था, लेकिन मेरे अब्बू को ही पता था। तो मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कोई डजंट मैटर, स्टे विद अस, हम ख्याल रखेंगे। एंड वी नो कि मतलब क्या होता है, ये किस किस्म के बच्चे होते हैं, एंड हाउ मच पीपल हैव द tendency to exaggerate a lot of things and how much people have the tendency to victimize themselves. I think during these times, having an adult around is so important. Having a sane adult around is so important because they understand you. And for me, that sane adult was my mother, because my mom is clinically depressed. So she knew what I was going through. So she gave me her antidepressants one day. And I took them, and उससे मुझे what they do is that they put a sort of firewall in front of your brain कि you can't think. So you stop thinking
और I don't know what those antidepressants used to do, लेकिन मुझे वो they would stop me from crying. एंड मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, तो मेरी अम्मी मुझे जो है ना स्लीपिंग पिल्स दे देती थी, और मैं स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाता था, और मैं सुबह की क्लासेस मिस कर देता था यूनिवर्सिटी की, और मैं क्लासेस नहीं ले पाता था. फिर अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि इफ़ यू हैव एक्सट्रीम एंग्जाइटी एंड यू कांट स्लीप, देन why don't you try an alprazolam? An alprazolam is Xanax. Why don't you try Xanax? ठीक है. So I said, okay. Even though that sounds like a very bad idea, like, let's do it. Let's see. Anything that can make me stop wanting to kill myself would do. Anything that's not a haram drug that makes me stop wanting to kill myself, I'm all for it. मुझे करा दो. तो उसने कहा, just go buy it. And I went and I bought it. And क्योंकि पाकिस्तान में no one really asks for like a prescription for an antidepressant, तो मैंने ले ली, और मैंने वो ले ली और मैं वो खाता रहा. एक लेता था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मैंने उसको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया. स्टार्ट टेकिंग 4 in one intake, 3-4, एंड आई यूज़ टू टेक इट सो मच कि मैं यूनिवर्सिटी के पहले के 2 हफ्ते मुझे याद ही नहीं है यूनिवर्सिटी के क्या हुआ था. मुझे पता ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं मैं यूनिवर्सिटी गया था. मैं कॉन्स्टेंटली हाई हुआ करता था उसके ऊपर, मुझे पता ही नहीं था यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है. एंड आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. लाइक मैं अभी नोट्स निकालूंगा ना, नोट्स के ऊपर Xanax लिखा हुआ है. लाइक आई वुड कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट व्हाइल आई वाज स्टडीइंग इन क्लास, एंड ओनली माई फ्रेंड तैयब न्यू अबाउट इट. एंड तो तैयब मुझे कॉन्स्टेंटली बोलता रहता था. अच्छा, उसके दौरान फिर आई यूज्ड टू ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ लाइक कट्स ऑन माई हैंड्स. मेरा पूरा हाथ कट से भरा होता. शुरू के यूनिवर्सिटी के गर्मी के दौरान मैं पूरे फुल स्लीव्स पहन कर आता था, छुपाता था अपना हाथ ताकि किसी को दिखे ही नहीं. सिर्फ तैयब ने एक दफ़ा देखा था, और तैयब ने मुझे बहुत सुनाई थी उसके बाद. एंड आई थिंक उसके बाद मैंने कुछ किया था कट्स. लेकिन द वियर्ड थिंग अबाउट पुटिंग कट्स ऑन योर हैंड्स इज, like, I know you guys think, oh, this is so stupid, why is someone hurting themselves, someone who's hurting, why are they hurting themselves? You know why I used to do it? You know why? It's because I wanted a physical pain to take my mind off of the mental distress and pain I was in. I wanted a physical pain to just numb the mental pain. This is why I used to do it. And it was fun. Imagine how fucked up your brain has to be to think that cutting your hand and putting cuts all over your hand is fun. That's messed up. That's not a place you should be in. But I was in it, and it's just, it was bad. It was really bad. I'm not self-victimizing myself here. I don't want you to feel sorry for me. I'm out of that phase, but I'm just telling you how bad it was. Then I started going to therapy. I told her all about this, my therapist. I think her name was Nadia. So I told her everything, and she started giving me a lot of exercises to do. And पूरी यूनिवर्सिटी में मैं, ड्यूरिंग दैट टाइम इन यूनिवर्सिटी, लाइक जो पहला मेरा तीसरा सेमेस्टर था, मेरी 3.7 GPA थी पहले साल की, कलेक्टिव GPA, CGPA. मेरे तीसरे सेमेस्टर मैंने आफ्टर लाइक अ मंथ और सो, जब मिड्स हो गए थे, तो मिड्स में मेरे 20 में से 6 मार्क्स आ रहे हैं, 20 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं जाता था. क्यों नहीं पढ़ा जाता? कि कॉन्स्टेंटली Xanax पे मैं नशे कर रहा था. Xanax के सोच पाता नहीं था. कॉन्स्टेंटली घर आके सोता रहता था, और बस हाथ पे कट्स होते, डिप्रेस था फुर्सत से, तो इसलिए नहीं पढ़ रहा था. और पढ़ा ही नहीं जाता था. बैठ के सोचने बैठो तो वो बाकी पुराने बुरे किस्म के ख्यालात दिमाग में आ जाते थे कि ओ इट्स जस्ट बैड. और फिर यूनिवर्सिटी जाओ तो यूनिवर्सिटी में 10 बातें सुनो, घर आओ तो घर पे बातें सुनो. दिस इज बैड टाइम. तो इसलिए पढ़ा नहीं जाता था. तो आई सैट डाउन इन November, and I started thinking to myself, is this how it's gonna be my entire life? Is this how it's gonna be for the rest of my entire life? I started thinking, no, this shouldn't be it. Like, I deserve more than this. I'm not this person. This isn't me. So I started thinking, okay, what do I do? Because I realized at that moment that whatever I was going through my head, this depression, this drug addiction and everything, this is not something you can fix while you're also focusing on your mechanical engineering degree. So I took the sane, decision to also focus on my degree this semester,
to the extent where I pass my exams, just pass. That I just have to pass, और मुझे उसके लिए ज़्यादा खास पढ़ना नहीं पड़ेगा. लेकिन I also make a conscious effort and prolonged effort to fix my mental health. And for the next 4 months, or 4 or 3 months, I just did that. I just focused on getting better mentally. That was literally my only concern. मैं classes में मेरी attendance लो थी, मेरी attendance इतनी लो थी कि मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देते थे वो लोग. तो मैंने सर को जाके मैंने CR को समझाया. मेरा CR मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ताहा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो मैंने समझाया, यार तुम्हें पता है मेरे साथ क्या चल रहा है? कह रहा है आई नो, एंड आई विल जस्ट गो टू द क्लास एडवाइजर, मैं उनको समझा दूंगा कि दिस किड हैज़ अ डिप्रेशन. तो ये नहीं कर पा रहा था. And we actually wrote a proper statement that I have depression, so that's why I couldn't study. But I knew they wouldn't buy it, so I had to like make something else up. तो ये सब होता रहा. And फिर मैंने also I realized कि यार if I, you know, I also need to get rid of this drug addiction. But how do I do that? Like it's gonna be a really long, difficult process. तो मेरी जो दोस्त थी अलीज़े और मेरी दोस्त थी फातिमा, they helped a lot. Tayyab also helped a lot. Taha also helped a lot. And I helped myself, to be honest, properly. तो मैंने उसको intake आराम से कम करना शुरू किया, to the point where I just stopped taking it. Like पहले 4 लेता था एक वक्त में, फिर 3 लेना शुरू, एक हफ्ते में फिर एक कम की, फिर दूसरी दो हफ्तों बाद एक और कम की, फिर 3 हफ्तों बाद एक और कम की, to the point after a month I was just taking 1. And then I stopped taking it. And the drug addiction इस तरह ख़त्म हुई. फिर ये जो सैडनेस थी, ये सब कुछ था, ये किस तरह ख़त्म हुई? ये इस तरह ख़त्म हुई, आई न्यू आई हैड टू पिक अप अ हॉबी टू डू. और वो हॉबी क्या थी? आई स्टार्टेड अ चैनल. मैंने कहा यार आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल. एंड दिस इज समथिंग आई थिंक आई एम गुड एट. आई थिंक आई एम गुड एट टेलिंग स्टोरीज. सो आई एम गोना स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल दैट इज़ जस्ट फॉर मी. And the only reason I started a channel is because I was heavily depressed. And this is the entire story behind it. I know I always say I'm depressed, that's why I started a channel. This is the story. This is why I was depressed. This is what I never shared before. So I started a channel and it helped immensely. आप लोग मेरे दिसंबर का चैनल देखें ना तो आपको पता होगा मैं शुरू में कितना मेरा Q&A देख लें सबसे पहला वाला. वो ऐसा Q&A था कि मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था, और यूनिवर्सिटी जब मैं वापस आया था, मैं वापस इसलिए आया था कि मैं इतना सैड हो गया था क्लास के अंदर. मैं क्लास के बीच में उठकर आ गया था घर. मैंने कहा मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा, आई एम गोइंग होम. और मैं घर में बैठा, मैं कॉन्स्टेंट सोच रहा हूँ क्या करूँ. लाइक आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग. सो आई पॉप्ड Xanax, और मैंने 2-3 Xanax खाए, और मैंने कहा अब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. आई सैट डाउन एंड इट्स एविडेंट हाउ सैड आई वॉज इन दैट वीडियो. लाइक इतनी सैड वीडियो थी वो. लाइक मैं बस डिप्रेस होकर आंसर कर रहा था सारे. सो लेकिन आई रियलाइज कि दिस समथिंग आई हैव टू डू. If I want this to end, making videos is the way to do it. And it helped so much. Like मैंने दिसंबर में आई थिंक कोई मैंने 11-12 वीडियोस निकाली थी. कोई 12 वीडियोस निकाली थी मैंने. और वो सिर्फ इसलिए निकाली थी क्योंकि मैं बार वीडियोस इसलिए निकाला था क्योंकि I just needed something to make it all stop. And videos were the way to do that. तो इसलिए मेरा YouTube चैनल की इतनी humble beginnings इसलिए थी क्योंकि it was just a way for me to escape my mind in a way. ठीक है, समझ में आया? फिर मुझे पता था मेरे एग्ज़ाम्स तो बहुत ही बकवास होने. मैं एग्ज़ाम्स देकर आया एंड मेरे पेपर्स एवं फजूल बकवास हुए. छाप के थोड़े आगे से पेपर किए, थोड़ा सा छापा था और बहुत मेहनत की, पास किए पेपर. एंड फिर अच्छा, टू दिस पॉइंट जब मेरा रिज़ल्ट आ रहा था ना, this is the point where I was done with my drug addiction. तालियां बजा रहा हूँ ये. और ख़त्म हो गई थी. और डिप्रेशन जो स्टेज था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था. एंड हेट कमेंट्स एंड हेटरेड इन जनरल wasn't getting to me because I had dealt with these emotions. मैंने यही चीज़ करना शुरू की थी. मुझे जब भी
कोई भी बुरी मेमोरी आती थी ना, मैं या तो वीडियो बनाने चला जाता था या फिर मैं बैठ के मेडिटेट करता था, सोचता था कि उसको फिर से रिलीव करता था, मेमोरी को पूरा फिर से लिखता था उस मेमोरी को कि क्या हुआ था, ज़रा बताओ तो, दिमाग में क्या आ रहा है, ये आया था, ये आया था, और फिर मैं उसको फिर से रिलीव करता हूँ। अच्छा क्या ये सही लिखा है, झूठ लिखा हुआ है, मैंने एग्जैजरेट किया है, ये क्या है, लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, देयर वाज नथिंग एल्स टू इट। अच्छा मैंने झूठ बोला था क्या, जब मैंने जब बातें करता था, मैंने क्या इधर झूठ लिखा है, ऐसे ऐसे मैं पूरा सोचता था और मैंने पूरा लिखा उसको एक जगह, बार बार लिखता था। एंड इस तरह मैं उन चीज़ों को रिलीव करता था, उस हेट्रेड को, एंड इट वेंट अवे टू द पॉइंट where when my result was about to come out, anything that is part of the external did not affect my internal state, because I realized that only I have full control of my happiness, and I knew how to deal with negativity at that point, क्योंकि मैंने इतनी देख ली थी और मैंने उसको मैंने हेल्दी तरीके से मैं उसको डील किया। और फिर मेरा रिजल्ट आया और मेरी जीपीए क्या आई, क्लास लोवेस्ट 2.4। 3.7 जिसकी जीपीए आती, 3.7 इज 83%, उसकी 2.4 जीपीए आई, विच इज आई थिंक 58%। मैंने अपना रिजल्ट देखा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यू नो वाई? बिकॉज आई हैड डेल्ट विथ नेगेटिविटी। आई वॉज सो हैप्पी कि आई पास्ड। आई वॉज सो हैप्पी कि even despite a drug addiction, despite depression, despite hatred, despite having a channel, I passed my exams. और मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी अम्मी को रिजल्ट जाके दिखाया, मैंने अम्मी को बोला कि कम, अम्मी ने बोला कम आई है, मैंने कहा हाँ कम तो आई है, 3.7 से 2.4। कह नहीं है कोई मसला नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी कम क्यों आई है। मैंने अब्बू को दिखाई, अब्बू ने कहा कोई मसला नहीं है, वी गेट इट, वी डोंट मैटर, इट डजंट मैटर, बाद में उठा लेना। मेरी बहन की कॉल आई, मेरी बहन कहती क्या हुआ, मैंने कहा पास हो गया। And this is not something I say because I'm a very good student. I like to believe I'm a good student. Alhamdulillah, माशाल्लाह। तो I'm 3.7 3.6 से तो ऊपर जीपी आनी चाहिए मेरी। लेकिन जब मैं अपनी बहन को बोला मैं पास हो गया, 2.4 आई है, कहती तुम तो सही हो ना, तुम तो सही हो ना, लाइक अब तुम तो सही हो ना। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सही हूँ। कह रही तुम कुछ कर तो नहीं रहे ना उल्टा सीधा। मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर रहा। कह रही बस कोई मसला नहीं है। So this was a story of depression and drug addiction that I haven't really talked about before. So I know आप अगर मेरे बारे में कभी भी कोई स्टोरी डालेंगे या कोई वीडियो मेरी शेयर करेंगे या फिर दोस्तों को बताएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई who knew me from like 2 years ago or a year ago or 3 years ago, जिसने मेरी ये कैंसलेशन देखी होगी, वो आपको हेट्रेड भेजेगा कि ओ वाई यू टॉकिंग दिस हरासर और अब्यूसर। एंड वो लोग कहाँ से उस बात की बेसिस बनाएंगे कि हमने कहीं सुना था किसी से या फिर हमने कुछ देखा था और वो अब ऐसा ही है। टू जज समवन बेस्ड ऑन द वर्स्ट थिंग देव एवर डन व्हेन दे वर यंग इज द शिटिएस्ट थिंग यू कुड एवर डू। To judge someone based on the worst thing they've ever done when they were a teenager is the shittiest thing you could do. And to make an assumption that you know everything about a person without ever talking to them once, or just to say that you know everything about this person even though you never talk to them, or just because their account is public, just reflects badly on you. So I know अगर आपको hatred मिले मेरी वजह से या फिर a lot of people block me और कुछ भी, it's fine, you're allowed to make your judgment. लेकिन I'm just happy because I have this audience who loves me and cherishes me big, and I didn't think I deserved it at any point, and I'm so glad I do. Because at one point I knew I was never going to have what I have right now, but I do, and that's because I made an effort. That's it. It's one day by day. हल्के हल्के एफर्ट करो और हो जाता है, सब सही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो this was the podcast. This was so heavy, but I hope you sticked around till the end. And Allah Hafiz. Be happy. This is where be happy came from, by the way. Depression. Me constantly saying it to myself.